Okay, so we'll continue with questions of projectile motion. First question for today. At the height 80 meter, an aeroplane is moving with 150 meter per second. A bomb is dropped from it so as to hit a target. At what distance from the target should the bomb be dropped? ये important इसलिए है because many times question is not understood well. So you have a aeroplane here, right? Let us say there is some target over here. There is a target over here और इसको hit करना है. Velocity of aeroplane is 150 meter per second and you're dropping a bomb which should hit the target, and the bomb is dropped from a height of 80 meter, right? Correct. इसका मतलब instead of showing 80 meter here, what I can do is I'll just mark some points. मैं बोलता हूँ A point से drop हुआ, C point पे hit करना है, और ये जो distance है A से ground तक का, मैं इसको इस point को B बोल देता हूँ, right? Then it becomes easy for you to understand. Okay, right? Then you are dropping the bomb from A which should hit C. Important is that you understand कौन सा distance पूछा है. Many students confuse this distance with the range. At what distance from the target the bomb should be dropped? Bomb कहाँ से drop हो रहा है? A point से. Target कहाँ पे है? C point पे. मतलब आपको distance क्या पूछा है? AC and not BC. I have seen many students creating this confusion, right? So you are supposed to find out AC, and you can see AC is hypotenuse, so it will be AB square plus BC square. AB is already 80 meter, right? And you can actually find out what is range R, क्योंकि horizontal motion में मतलब BC मतलब range, horizontal motion में when you are dropping something from a height, you must remember इस केस में initial velocity into under root of 2h by g, ये बनता है आपका रेंज का फॉर्मूला. यू शुड रिमेंबर दिस. या फिर और बोलो इजीली तो इट इज इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट इज फ्रॉम ए टू सी, time of flight is just the time taken by the bomb to hit the target, and you have already derived this as 2h by g. So it is important for you to keep revising theory. जो मैंने पहले 2 लेक्चर में थ्योरी लिया था उसमें मैंने ये इक्वेशन डिराइव भी करके दिया है, तो ये इजी है. सो BC you can find out. U is 150 meter per second, 2 into height is 80 and G is 10. 16 का रूट is 4. 4 into 150 is 600. राइट, यहीं पे क्वेश्चन हो गया खत्म हमारा. कैसे आंसर आएगा? 605.3, 605.3. क्यों? मुझे AC चाहिए तो मैं करूंगा AB का स्क्वायर, और AB है 80 उसका स्क्वायर, प्लस BC विच इज 600 का स्क्वायर. तो 600 स्क्वायर में आप कुछ प्लस कर रहे हो, प्लस सम स्क्वायर, फिर उसका रूट लोगे. तो 600 स्क्वायर करने के बाद उसमें कुछ ऐड करने के बाद जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो वो 600 के ऊपर ही आएगा, राइट? तो यू नीड टू नो दिस. You are adding something to 600 square and then taking square root, which means the square root, the final answer will be more than 600, and that is 605.3, because there's only one option which is greater than 600. Okay, first thing that कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है? AC, ये पता होना चाहिए. बोला है, क्लियरली बोला है, at what distance from the target the bomb must be dropped. तो bomb और target का डिस्टेंस मतलब hypotenuse AC. ए भी दिया है,
base is horizontal range, for horizontal projectile motion है ये, तो horizontal projectile motion में r equal to u into time of flight, that is u into under root of 2h by g. bc मिल गया, and then you can simply find out what is ac, is just 605.3 meter. Easy question. Next, a bomber plane moves horizontally with a speed of 500 meter per second, and a bomb released from it strikes the ground in 10 seconds. मतलब time of flight 10 second है. Angle at which it strikes the ground will be. Good. How do you find out angle? So let me draw a diagram over here. ऐसा इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन था ये u equal to 500. Bomb will go something like this. When it hits the ground, so there will be two components. इनिशियल तो सिर्फ x कंपोनेंट था, ये पता होना चाहिए. दिस इज ओनली x कंपोनेंट. ओके, y कंपोनेंट इनिशियल इज 0. uy 0 होता है इस केस में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में. मतलब जब आप एक हाइट से ऑब्जेक्ट को धक्का देते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश देते हो, मतलब वर्टिकल uy इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, y कंपोनेंट 0 होता है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. तो जब फाइनली ग्राउंड पे आया प्रोजेक्टाइल, मतलब लाइक दिस है ना, द प्रोजेक्टाइल इज मेकिंग सम एंगल. इफ यू वांट आई कैन जस्ट टेक दिस पार्ट आउट, शो इट इन कलर. तो वो ऐसा कुछ होगा, और ये जो प्रोजेक्टाइल है, this final velocity is making some angle theta, and they're asking you what is angle theta, ऐसा पूछा है. तो कैसे फाइंड करेंगे? इजी है. क्यों इजी है? बिकॉज यू शुड नो ऑलवेज, मैंने बताया है एंगल जब फाइंड करना हो तो tan थीटा, और tan थीटा हमेशा होता है y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट. और क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल ना ग्राउंड पे आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे. एंड हाउ डू यू फाइंड आउट कंपोनेंट्स? इट इज क्वाइट सिंपल. व्हाट इज vy uy माइनस या प्लस प्लस gt, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज गोइंग डाउन, तो प्लस gt होगा, माइनस नहीं होगा, याद रखना. vx मतलब ux प्लस 0. y, क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है, फोर्स नहीं है तो x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 0. तो चाहिए तो मैं लिख देता हूं. एक काम करते हैं, जस्ट टू नॉट कंफ्यूज, मैं पहले पूरा पूरा लिख लेता हूं, एंड देन वी विल राइट डाउन वैल्यूज. ओके, सो uy प्लस ayt, ux प्लस axt. फिर हम बोल देंगे we know that uy is 0, ay is g, ux is always u, that is 500, and ax is 0, and t, which is time of flight, that is 10. तो tan थीटा हमको मिलेगा uy 0, g की वैल्यू 10 लेनी है, 10 into 10, that is 100, upon ux is 500 and ax is 0. So tan theta is 100 by 500, and that is 1 by 5. So theta is tan inverse of 1 by 5. है क्या? Tan inverse of 1 by 5. Yes. Option number A. Was very simple question. बहुत ही simple question था. Angle made by the final velocity vector is the angle with which a projectile or a bomb makes angle with respect to ground. तो same चीज है. Good, easy. Question number 3. A projectile fired with initial velocity u
at an angle, some angle theta has range r. If the initial velocity be doubled at the same angle of projection, the range will be joke. Q. Range is u square sine square theta, sin square theta, यहाँ भी गड़बड़ होती है, sin 2 theta upon g. Theta constant, g constant, मतलब r is proportional to u square since theta and g are both constants. मतलब r2 by r1 is equal to u2 by u1 का square, but given is u2 is doubled, है ना? Therefore r2 by r1 is equal to u2, मतलब 2u1 by u1 का square, u1 u1 cancel, मतलब 4 times, तो r2 is 4 times of r1. तो option number D. Simple. You just have to remember formula for range. खत्म. Easy है. थीटा और जी कांस्टेंट था, तो r is proportional to u square. So r2 by r1 is u2 by u1 square. So r2 is 4 times of r1. The angle of projection at which horizontal range and maximum height of projectile are equal. वैसे दो मेथड है इसके, मतलब दोनों मेथड एक्चुअली एक दूसरे से डिराइव होते हैं. एनीवेज, हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट इक्वल होना चाहिए. रेंज क्या है? यू स्क्वायर. मैं एक्चुअली क्या करता हूँ ना, व्हाट आई डोंट वांट, मैं रेंज को लिखता हूँ 2ux uy बाई जी. क्यों? अगर मैं r इक्वल टू h लिख रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो देखो, और h मैं लिख रहा हूँ, यू रिमेंबर h फॉर्मूला, you should remember u square sin square theta by 2g, है ना? ये याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट रेंज इज 2ux uy by g एंड हाइट इज uy square by g. ये याद रखना, ज्यादा स्क्वायर है, इजी है, ज्यादा इजी है. देखो दोनों सॉल्व करेंगे हम लोग. यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली एक ui कैंसिल हो गया, g और g कैंसिल हो गया, करेक्ट. फिर हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिला? हमको मिला 2ux इज इक्वल टू uy बाई जी. यहाँ पे मुझे पहले u स्क्वायर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखना पड़ेगा बाई जी. यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर कैंसल, एक साइन कैंसल, एक जी कैंसल. यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ux इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट होता है u cos थीटा, y कंपोनेंट होता है u sin थीटा बाई g. हाँ, g कैंसिल हो गया था, सॉरी फॉर दिस, g ऑलरेडी इज गॉन. नीचे 2 होना चाहिए, दैट्स इट. तो 2 होना चाहिए. फिर u और u कैंसिल कर दोगे. फिर यहां से आपको मिलेगा साइन बाई कॉस इज tan थीटा इक्वल टू 4. So theta is equal to tan inverse of 4. ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पे भी वही होगा, अब यहाँ पे भी सेम है. तो 2 into 2 is 4, that is sin upon cos, that is tan theta. तो theta is tan inverse of 4. So it doesn't matter how do you remember. Okay, मैं प्रेफर करता हूं to remember r in terms of ux uy and h in terms of uy, क्योंकि इजी होता है. r is 2 ux uy by g, h is uy square by 2g. वो थीटा में क्या होता है ना, ये साइन 2 थीटा को बहुत बार साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं स्टूडेंट्स. देन साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया तो गए काम से. क्यों? अगर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया तुमने, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो यह साइन स्क्वायर कैंसिल, थीटा ही कैंसिल हो गया, तो थीटा फाइंड कहां से करोगे? तो दिस इज व्हाट यू शुड बी केयरफुल ऑफ. और एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर होता है कि हमको छोटे छोटे मिस्टेक्स हमारे दिखते नहीं है, समझ में नहीं आता. थीटा कैंसिल हो गया, फिर आंसर कहां से लिखो अब? तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर मेथड 1. सेम है, सेम ही है वो, इजी. 3 किलोमीटर
Question number 5. The range of a particle when launched at an angle 15 degree with the horizontal is 1.5. What is the range of the projectile when launched at an angle 45 to the horizontal? Why simple? I'm telling you. I know range R1 is given by u square sine 2 theta by g, and range in this case is 1.5 u square by g. Sine of 2 into 15 is sine 30, and from here I know u square by g sin theta is half, है ना? तो चाहिए तो मैं एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, तो 1.5 is equal to u square by g sin theta is half, तो मुझे मिल गया u square by g equal to 3 किलोमीटर। और मुझे पता है जब एंगल 45 होगा तो r is मैक्सिमम, क्योंकि आप लिखते हो u स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 45 और ये 2 इंटू 45 साइन 91 हो जाता है, तो मुझे याद रहता है कि r max is u स्क्वायर बाय g। u स्क्वायर बाय g तो हमने फाइंड किया ना केस 1 से, है ना? तो हमने केस 1 से ऑलरेडी u स्क्वायर बाय g फाइंड किया, और जब मैंने 45 एंगल देखते से ही समझ में आ गया था। देखो, हाउ डज योर ब्रेन शुड वर्क? r2 मतलब at 45 हमको पता है, whenever a projectile is projected at an angle of 45 the range is maximum and the formula is u square by g। तो जैसे मैंने पढ़ा 45 डिग्री मतलब r max is u square by g, जैसे मैंने पढ़ा थीटा 1 पहले केस में 15 है तो u स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 15 साइन 30 हाफ नीचे g, तो u स्क्वायर बाय 2g, है ना? u स्क्वायर बाय g और साइन 30 हाफ, तो u स्क्वायर बाय 2g, और वहां पे r1 था ये, और r1 कितना है 1.5, तो 1.5 is u स्क्वायर बाय 2g, तो 2 शिफ्ट कर दिया तो 3 हो गया, u स्क्वायर बाय जी 3 हो गया, u स्क्वायर बाय जी ही तो r मैक्स होता है। तो मैं ओरली कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली, इट कम्स विथ प्रैक्टिस। आई बीन टीचिंग दिस सिंस आई डोंट नो मे बी 4-5 years नाउ, तो इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस, ओरली होगा, पढ़ते पढ़ते ही आंसर आ गया 3 किलोमीटर, खत्म, इजी। इट्स एप्लीकेबल टू सम क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन के लिए नहीं कर सकते आप, कहीं कहीं सॉल्व करना पड़ेगा। A cricketer hits a ball with a velocity of 25 meters per second at 60 degree above the horizontal. How far from the ground it passes over a fielder 50 meters from the bat? Very good. Very good question. यहाँ पे बैट्समैन खड़ा है, कहाँ पे? ओरिजिन पे। बैट्समैन ने बॉल को मार सॉरी, बॉल को मार दिया, बैट से 50 मीटर पे फील्डर खड़ा है। इनिशियल वेलोसिटी जो था, बैट्समैन ने जिस वेलोसिटी से हिट किया था u 25 मीटर पर सेकेंड था, राइट? हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासेस ओवर अ फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट, मतलब बेसिकली इस पॉइंट पे, आई विल टेक दिस पॉइंट एज सम पॉइंट, लेट अस से C पॉइंट। हाउ फार मतलब दे आर आस्किंग यू h, मतलब दे आर आस्किंग यू y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दे आर आस्किंग यू y इन फैक्ट। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा ये क्वेश्चन? इजी है। y मतलब s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, राइट? तो y इक्वल टू uy एंड uy इज u साइन ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि एंगल, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60, माइनस g/2, y माइनस बिकॉज इनिशियली जब प्रोजेक्टाइल ने मोशन स्टार्ट किया इट वाज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, सो a इक्वल टू माइनस g t स्क्वायर। हाँ, मैंने यहाँ पे t नहीं लिखा तो मुझे t लिखना पड़ेगा। तो यू आर जस्ट सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज t, और इजी निकाल सकते हैं हम लोग। तो इजी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग t? आपको पता होना चाहिए that if I
टेक x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब ux, ये x है 50 सेंटीमीटर. तो what I can write is, let me call this equation number 1. We know that what we know is x is equal to uxt, है ना. ऑफ कोर्स प्लस हाफ ax t स्क्वायर है, पर क्योंकि ax 0 होता है, देयर इज नो फोर्स, मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन. तो यहां से तुम लिख सकते हो t is equal to x by ux, and you know what is x by ux, it is u cos 60. ये मेथड 1 है, मैं मेथड 2 बताने वाला हूँ. दिस इज सिंपल. ओके, मेथड 2 इज मच मोर सिंपलर देन दिस. सो ट्रेडिशनल मेथड पहले देख लेंगे. दिस इज ट्रेडिशनल मेथड. तो क्या करोगे आप अब? इज नथिंग. अब ऐसा करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 y is equal to u sin 60 into t, which is x upon u cos 60, है ना. x upon u cos 60 minus g by 2 t स्क्वायर, मतलब x upon u cos 60 का स्क्वायर. तो u कैंसल, sin 60 by cos 60, रूट 3 by 2, 1 by 2 मतलब रूट 3 बिकॉज tan 60 है वो. x is 50 meters minus g is 10 by 2. Again x is 50, u is 25, cos 60 is half, right. तो ये आ गया 1 जा 2 जा 4, है ना. तो 1 जा एंड 5 जा, 5 into 4 is 20. ओके, तो ये सॉल्व करो. 50 रूट 3 माइनस दिस इज 20. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. और सिर्फ एक प्रॉब्लम है, मैंने g की वैल्यू जो है वो 10 ले ली है, उन्होंने बोला नहीं है, तो 9.8 ले लो. 9.8 ले लो, ठीक है. एनीवेज इट्स सिंपल. रूट 3 इज 50 into 1.732 minus 20. ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको. ओके, तो दिस इज वन पार्ट. ठीक है, सॉल्व वो आप करते रहोगे. इट्स नॉट डिफिकल्ट रियली, दैट यू आर गोइंग टू डू इट. और स्क्वायर नहीं किया था मैंने, तो वो स्क्वायर करना पड़ेगा. ठीक है, आई विल फिनिश इट ऑफ फॉर यू. आई विल जस्ट फिनिश इट ऑफ फॉर यू. दिस इज 50 रूट 3 ओवर हियर माइनस g by 2. g अगर मैं 9.8 लेता हूं तो 9.8 by 2. x is 50, u is 25, this is half again और इसका स्क्वायर है. तो ये 1 जा 2 जा 4 स्क्वायर इज 16. तो दिस इज 1 जा 4.9 जा 50 into रूट 3 माइनस 4 स्क्वायर 16 into 4.9. तो 4.9 into 16, राइट. तो 16 5 आपको पता होना चाहिए. 80 है अराउंड, रफली 80. 1.7 into 5 roughly 88 point something. तो ये टोटल आंसर आएगा 8.2 मीटर. ओके, दिस इज मेथड 1. आंसर इज 8.2, नो डाउट. कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, दैट इज अप टू यू. दिस इज मेथड 1. थोड़ा लंबा वाला मेथड है. व्हाट इज इजी मेथड? इजी मेथड मतलब व्हाट यू कैन डू इज, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं बिकॉज आई नीड सम स्पेस, राइट. मेथड 2 is very simple. h पूछा है, हाइट. हाइट h मतलब y डिस्टेंस. हमको इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल याद है क्या? तो आई विल यूज अनदर पेज, दैट्स बेटर थिंग. डू यू रिमेंबर इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी? x tan थीटा माइनस g by 2, है ना. यहाँ पे x स्क्वायर था,
u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही तो इक्वेशन था यहाँ पे, g/2 x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर डायरेक्टली ये पता होगा, x पता है, थीटा पता है, करेक्ट, राइट, तो आपको x भी पता है, आपको थीटा भी पता है, सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व, डन, डायरेक्टली आ जाएगा। 50 tan of 60 is root 3, g is 4.9 by 9.8, g की वैल्यू by 2 is 4.9, 50 स्क्वायर, 50 स्क्वायर, u स्क्वायर 25 स्क्वायर, cos 60 का स्क्वायर 1 by 4, सॉल्व करो, वही है। तो which one do you feel is easy? Of course method number 2, of course method number 2 is easy, क्योंकि फिर मेथड 1 यूज करोगे तो पहले x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखो, मतलब x इक्वल टू यू एक्स टी लिखो, फिर t इक्वल टू एक्स अपॉन यू एक्स लिखो, दैट इज x अपॉन यू cos 60, फिर y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लिखो, उसमें यू वाई यू साइन 60 डालो, और t के लिए x अपॉन यू cos 60 डालो, एंड दिस इज हेडेक। बट इफ यू नो दैट ये जो कुछ भी बोला जा रहा है, y कंपोनेंट बोला जा रहा है हमको, y कंपोनेंट डिफाइन करना है ना, हाउ फार अबव द फील्डर, तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्टेंस पूछा गया है आपको। अरे तो फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद है तुम्हें, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है दैट यू नो थियरी फर्स्ट, बिकॉज अगर थियरी मैंने किया ही नहीं, फिर मुझे याद ही नहीं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या था, तो अभी याद नहीं, तो फिर करते बैठो लंबा मेथड, ये इजी था ना, हमको पता x पता है, थीटा पता है, g पता है, u पता है, खत्म, सब्स्टिट्यूट, सॉल्व, इजी, डन। कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, nobody can save you from calculations, that is there, you will have to solve, you'll have to calculate for yourself, and 8.2 मीटर आंसर आएगा, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापस आ गया अभी, अगेन अगेन अगेन, इट इज सिंपल। The trajectory of a projectile is represented by y equal to under root of 3x minus gx square by 2. Angle of projection is 60 degree. Oral oral. अभी लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने अभी, अभी लिखा ना, what did I write just now, what did I write just now is this, this is what you need here, right? Equation 1, equation 2, we know that y equal to this, comparing 1 and 2, मैंने 1 और 2 को कंपेयर कर दिया, आई डोंट वांट टू कंपेयर सेकेंड टर्म, जरूरत ही नहीं है ना, सिर्फ पहले टर्म को कंपेयर कर दूंगा ना मैं, आई डोंट नीड सेकेंड टर्म, तो मैं बोलूंगा अच्छा यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे √3, ओके, तो आई विल से therefore tan थीटा इज इक्वल टू √3, therefore थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, खत्म बात, हो गया सॉल्व, ऑप्शन नंबर सी। That is why it is another evidence to tell you theory important है, theory के बिना न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, absolutely no point, तो that easy। A body is thrown at an angle 30 degree to the horizontal theta दिया है, with velocity 30 मीटर पर सेकेंड u दिया है, after 1 second its velocity will be, 1 सेकेंड के बाद, do you remember मैंने आपको बताया था that final velocity at any point of time during the path of projectile, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर हियर, कहीं पे भी होगा, आई डोंट केयर, दिस इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और अगर आपको याद होगा, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर मोशन इन 1D में लिया है, याद होगा, हमने ये v के मैग्नीट्यूड के लिए, ऑफ कोर्स v इज इक्वल टू वी एक्स मतलब यू एक्स, एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होता, मतलब u cos थीटा आई कैप, वी वाई वॉज u sin थीटा t, ऑफ कोर्स यहाँ पे t है, आई एम नॉट डिनाइंग t,
माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर, ऐसा हमने लिखा था जे का। फिर मैंने आपको बताया था, राइट, आई हैव टोल्ड यू, नो सॉरी 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 सॉरी, मैंने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे, राइट, प्लस वी वाई वॉज यू वाई प्लस ए वाई टी। मैं और डिटेल में जाता हूँ, ठीक है। वी एक्स इज जस्ट यू एक्स, क्योंकि देर इज नो एक्सेलरेशन आई कैप। वी वाई इज यू वाई प्लस ए वाई टी, बिकॉज वी इक्वल टू यू प्लस ए टी जे कैप। फिर हमने इसको लिखा था यू एक्स इज यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू वाई वॉज यू साइन थीटा एंड ए वाई इज माइनस जी टी जे कैप, राइट। मिल गया, ये वी बार मिल गया आपको। वेलोसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड फिर क्या आएगा, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड, वी विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, करेक्ट, मतलब यू एक्स स्क्वायर, है ना, राइट, मतलब यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट्स का मतलब यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, राइट। तो वैल्यूज डालो, सॉल्व करो, बट it is correct, it is, I'm not saying it is not correct, it is correct, but we want to make minimum mistakes. So how do you make minimum mistakes is, there's a trick to it also. हमें क्या पता है, हमें पता है v bar is vx I cap plus vy j cap, मतलब हमको डेफिनेटली पता है that v is under root of vx square plus vy square। मैं क्या करता हूं, मैं vx इक्वल टू ux इक्वल टू u cos of थीटा पहले ही कर लेता हूं, है ना, राइट, मतलब u is 30, cos 30 is root 3 by 2, तो मैं पहले ही कर देता हूं 15 रूट 3, मिल गया। vy is uy plus ayt, मतलब दिस इज u sin 30, है ना, माइनस g इंटू टी, u is 30, sin 30 is half, g is 10 and t is 1, मतलब ये 1 जा ये 15 जा 15 माइनस 10 is 5, मिल गया, we have this। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, दैट इज मोर इजी थिंग, क्योंकि देन यू विल मेक लेस मिस्टेक्स। वी एक्स स्क्वायर, तो ये वी एक्स था, मैं इसका स्क्वायर भी यहीं पे ले देता हूँ, 15 रूट 3 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इंटू 3, है ना, 15 का स्क्वायर इज 225 इंटू 3, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 3, 225 इंटू 3, मैं बार बार बोल रहा हूँ 225 इंटू 3, 200 इंटू 3 600, 25 इंटू 3 75, तो 675, ओके, राइट। और वी वाई का स्क्वायर इज, वी वाई आपके पास 5 है, तो वी वाई का स्क्वायर 25 आएगा, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज जस्ट अंडर रूट ऑफ 675 plus 25, that is under root of 700, this is under root of 7 into 100, that is 10 root 7, ऑप्शन ए। ऐसा मिनिमम मिस्टेक्स इन कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने पहले वी एक्स और वी वाई इंडिविजुअली मैंने फाइंड कर लिया और बाद में मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। इफ यू आर एक्सपर्ट, if you are sure about what you are doing, so you can also use directly formula which we obtain after substituting for vx as u cos theta and vy as this particular thing। अगर आपको याद है मेथड 2 आप डायरेक्ट कर सकते हो, but if you are confident enough that you are not making any mistake, तो फाइनली सब सॉल्व करने के बाद ये आता है यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। फिर आपको सिर्फ u g t थीटा की वैल्यू डालनी होती है, सॉल्व करना होता है, आंसर विल बी अगेन सेम। तो
if you are sure enough, if you are confident enough about the formula that you are writing is this, क्योंकि Vx u cos theta और Vy u sin theta माइनस GT डालने के बाद a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि Vy स्क्वायर होगा मतलब इसका स्क्वायर होगा, वो सब स्क्वायर सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये फॉर्मूला आता है. If you are confident enough about the formula, then you can directly go ahead with this method. If not, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या करना है. If for a given angle of projection the horizontal range is doubled, the time of flight becomes. Again, this can be solved in two different ways. Okay, मैं आपको बता देता हूं मेथड नंबर 1. आप डबल क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट है, मतलब r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g पता होना चाहिए, g कांस्टेंट थीटा कांस्टेंट, तो r इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर. सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g होता है, ये पता होना चाहिए. थीटा कांस्टेंट, g कांस्टेंट, मतलब t इज प्रोपोर्शनल टू u. r इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर एंड u इज प्रोपोर्शनल टू t, मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, है ना. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, r proportional to u square but u proportional to t, मतलब r is proportional to t square. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा अगर आप रेंज को डबल करोगे, तो t is proportional to अंडर रूट ऑफ r, मतलब t2 by t1 is अंडर रूट ऑफ r2 by r1. और ऑलरेडी बोला है कि रेंज इज डबल्ड, मतलब r2 by r1 is 2, मतलब t2 by t1 is under root of 2, मतलब t2 is under root of 2 times of t1. Option number C. Done. Method 1. Method 2 I don't want you to do, क्योंकि फिर उसमें u फाइंड करो, ये फाइंड करो, वो फाइंड करो. Proportionality is always better because it saves your time, it saves your efforts. So this is how you will be solving such questions. Next, the speed of projectile at the highest point becomes 1 by root 2 times of its initial speed. ये हमने किया है, फिर भी बता देता हूँ. The speed of projectile at highest point, सबसे पहले ये पता होना चाहिए highest point पे y component 0 होता है, तो speed of projectile at highest point becomes 1 by root 2 of initial speed, मतलब x component, they are telling you that final x component is u by root 2, क्योंकि y तो 0 ही होता है ना, y तो 0 ही होता है. This is what they are trying to tell you. Ux is u by root 2. What is ux? U cos of theta, u by root 2. Okay, cancel, cancel. Cos theta is 1 by root 2, मतलब थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से 45 डिग्रीज, मतलब आंसर खत्म. Horizontal range of the projectile will be theta 45, मतलब horizontal range is maximum, मतलब r max is u square by g, मतलब ऑप्शन नंबर ए, मतलब खत्म. तो थीटा 45, cos थीटा 1 by root 2 आने के बाद समझ जाना चाहिए था थीटा 45, थीटा 45 मतलब r is equal to r max. Why? Because you already know this thing. आपको पता है ये u square sin 2 थीटा by g, तो आपको ऑलरेडी पता है u square by g sin of 2 into 45 sin 90 is 1, that is u square by g. तो कितना easy question था. At the highest point velocity becomes u by root 2, but at highest point vy is 0, right?
लिख दो since at highest point uy मतलब vy is 0, इसलिए हम ये लिख पाए। और ux is u cos theta, so it is equal to u by root 2, मतलब cos theta is 1 by root 2, theta is 45, theta is 45 मतलब range is maximum, range is maximum मतलब u square by g। तो your brain should work like this computer fast, एकदम fast, right? तो it's time to stop। 40 minutes 41 minutes लगे 10 क्वेश्चन के लिए, मतलब एवरेज 4 मिनट्स आपको 2-3 बार समझाना, यहाँ पे लिख के देना। ये जो 10 क्वेश्चन थे 10 मिनट में होने चाहिए, होते हैं। मैंने 2-3 तो ऑलरेडी बताए। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, इसलिए मैं प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 2D बहुत डेप्थ में लेने वाला हूँ। एवरीथिंग विल बी इन डेप्थ, राइट? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड ओके, वी विल स्टॉप फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन।